this one is fake. What about the actual ones? Why do you not post that? They all only fact checked all the fake videos, but did not put out a single video that was actual violence against the women, against the party workers, against their kids, their homes vandalized, everything. तुम्हें क्या लगता है अभी का जो सिनेरियो है उस पे सबसे पहले तो यार मेरे को पता नहीं क्यों इरिटेशन है इन लोगों से जो बार बार ये बोलते हैं कि रीड दिस बिकॉज दिस इज बीजेपी आईटी सेल, दिस इज फेक एजेंडा, दिस इज द कॉर्पोरेट्स मूव और दिस इज द मूव बाय द यार कम ऑन इफ समथिंग इज हैपनिंग सो हाउ कैन यू डिनाई द होल प्रोपोर्शन की अरे ये सब तो प्लान था, अरे कोई बात नहीं। मतलब ये एक्सेप्टेबल नहीं लगता ना कि आप इतनी बड़ी चीज को जिसमें बहुत सारे लोग अपने घर छोड़ के भाग रहे हैं, जिनके साथ बहुत बुरा हो रहा है, उनको आप एक फ्रेम में डाल के छोड़ दिए कि अरे ये तो पहले से पार्टी प्लान है या ये तो होना ही था या समथिंग लाइक दैट विच डजंट मेक्स इवन सेंस। So please, if someone from that mindset is listening to this, please पहले तुम उस चीज के लिए खड़े हो ना जो चीज हो रही है। तुम अगर कह रहे हो कि 80% 70% भी सही है तो पहले उसको बोलो ना। बाद में जो 10% 20% फेक फैलाया जा रहा है उसको तुम बाद में बोल दो कि भाई इसमें से ये गलत है, लेकिन तो पहले उसके लिए तो खड़े हो। पहले तुम उसी के पे क्यों चले जा रहे हो भाई ये देखो ये फेक है, ये फेक है, क्या फर्क पड़ता है उससे? तो मेन पॉइंट पे तो आ ही नहीं रहे हो। जितने सारे मीडिया जितने सारे मीडिया आउटलेट्स थे, because check any of them, just check any of them, NDTV, Scroll, Wire, Quint, even Republic, even Republic, बहुत दिनों तक they did not put out anything। जब तक politicians ने interfere नहीं किया तब तक इन लोगों ने कुछ नहीं किया। And even after the politicians interfered, no media outlet put even a single video। As Anubhav rightly pointed out कि अगर 10 में से 3 वीडियोस फेक हैं तो 7 वीडियोस के बारे में बात करो ना। Why will you deny the complete and one of the reasons that they deny completely, especially the Bengali population, Bengali elite, actually I'm pointing out to them, because ये जितना भी massacre हुआ है, genocide, Hindu genocide as we say it has happened in the rural parts, has happened to people who are impoverished। उनके शीशों के घरों में किसी ने पत्थर नहीं फेंके बंगाली elites के। That is why I'm pointing it out specifically to them कि if they are just trying to justify their vote, they are trying to justify that why BJP is not in power in Bengal when why TMC is, and why our vote was a right decision। Now they are into the all that justification loop कि जो हो रहा है ठीक हो रहा है। और and people say कि ये तो हमेशा का है बंगाल का। Why is it talked only right now? Because BJP is there। So I was like, what do you want? You don't want people to talk about it ever? And how like 300 400 families leaving Bengal, leaving their homes, crossing the border to Assam, normal in today's time। Where are we living? Stone age है क्या? इधर से उधर मार रहे पीट रहे एक दूसरे को। And they say that riots happen all the time, BJP also does it। I'm like, political killings are different। West Bengal ki political killings date back to the communist rule that ruled for 34 years। They used to cut fingers of those people in rural areas who did not vote for the party। The extremism was to that level। No wonder that they did not spread across the India। Right। And one of the reasons that people did not vote for BJP now, I think, is because they feared for their life। There are many BJP supporters who did not even go a step out of the house to vote for them। They think that if I vote for BJP, I'll be attacked। And if I vote for BJP, BJP is not going to win there। And people who are denying everything about it are just, they are like, ये तो हमेशा होता है। Why are you talking about it now? So अब वो
से उनको निकालना is like impossible, because if Bengali population doesn't stand up for itself, no one else will. They will be like, why are you even talking about it? You are not here. If you talk about it and they do not, it's no use. Swapan Das Gupta, who is actually in Bengal, to everyone, even the CPIM. CPIM and Congress are being attacked, but they also, but even after that, people are like, it's all fake. It's IT self-propaganda. But 90% हो सकता है. Talk about the ones that are real. I even commented on so many media outlets, okay, this one is fake. What about the actual ones? Why do you not post that? They only fact checked all the fake videos, but did not put out a single video that was actual violence against the women, against the party workers, against their kids, their homes vandalized, everything. भाई देखो यार, इस पे मेरा ये है कि जैसे कि कोई मना तो नहीं कर सकता कि बंगाल में हुआ नहीं है वायलेंस। अगर तुम मना कर रहे हो तो भाई तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है, ठीक है। इसमें ये तुम जरूर कह सकते हो, ठीक है, जैसे जो मैं सोचता हूँ इस पे, क्योंकि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है इस पे, क्योंकि यार बात हमेशा होनी चाहिए ना कि किसी भी मॉडर्न डे नेशन स्टेट पे, और खास करके अगर तुम एक एस्पायरिंग सुपर पावर भी हो, वहां पे भाई वायलेंस का जो है स्टेट मोनोपोली होना चाहिए, एज क्लियर एज दैट, ठीक है। डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ एक ही डेफिनेशन नहीं होता, डेमोक्रेसी की एक डेफिनेशन ये भी होती है स्टेट मोनोपोली एंड वायलेंस, क्योंकि क्लियरली हमारे यहाँ नहीं है, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि तुम प्रेसिडेंस क्या सेट कर रहे हो, वो जो आज एक पार्टी कर रही है कल को दूसरी पार्टी कर सकती है, ठीक है, नो इफ एंड बट। और अगर पार्टी स्पॉन्सर्ड नहीं भी है, ठीक है, मैं अगर पार्टी स्पॉन्सर्ड नहीं है तो भी ये डेंजरस प्रेसिडेंस है। क्यों है ये? क्योंकि अगर तुम एक कम्युनिटी के खिलाफ कर रहे हो, तो अगर कल को उस कम्युनिटी को ये लगा कि कल को हम आए पावर में, तो मैसिव रिटेलिएशन हो सकता है, या कुछ फ्रिंजी एलिमेंट किसी भी साइड पे मैसिव रिटेलिएशन करेंगे, जो इन द लॉन्गर रन किसी भी स्टेट के लिए सर्वाइवल नहीं है। मेरा ये कहना है कि भाई अगर वायलेंस हुआ है तो अगर फेक वीडियोस डाले जाने, जैसे निष्ठा ने कहा, तो उनके साथ रियल वीडियोस भी डालने जाने चाहिए कि हाँ यहाँ पे वायलेंस हुआ है, और वायलेंस हुआ है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। तो फिर ये है कि मेरा ये है कि भाई तुम खुद ऐसा ना हो जाए कि तुम अपनी पॉलिटिकल राइवलरी के चक्कर में देश को खा जाओ, ठीक है, क्योंकि इंडिया तुम सबसे बड़ा है ना, इंडिया एज अ कॉन्सेप्ट, इंडिया एज अ नेशन, वो तुम सबसे बड़ा है, ठीक है। बीज बीजेपी, बीज टीएमसी, बीज कांग्रेस, बीज लेफ्ट सेंट्रिक पार्टीज, एनीवन, ठीक है। इसमें अगर हुआ है तो अगर सेंटर ने स्टेट रिपोर्ट मांगी, अगर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने रिपोर्ट मांगी, तो रिपोर्ट क्यों नहीं पहुंची उनके पास, रिपोर्ट क्यों नहीं दी जा रही, ठीक है। और बीजेपी की भी एक जिम्मेदारी यहाँ बनती थी। आई एम नॉट ओनली कंडेमिंग टीएमसी इफ वायलेंस इज कंडक्टेड, क्योंकि भाई बिना रिपोर्ट के यार कुछ कहना मुश्किल होता है ना, क्योंकि तुम एक बार रिपोर्ट प्रॉपर आ जाए उसके बाद तुम उस पर टेक ले सकते हो, जो आउटसाइड से लग रहा है। रिपोर्ट आएगी भी तो मोस्ट ऑफ द ममता बनर्जी हैज डॉक्टर्ड वीडियोस है, मतलब उसकी स्टेट में उसी के पार्टी वर्कर्स क्या कर रहे हैं, शी डजंट इवन नो, like what a fool they have elected for their as a CM. वही तो मैं कह रहा हूँ कि डेंजरस है, at least he knows that something is happening, he just puts up the posters of all the violators. Property बेचो, खत्म करो. I do not know how far it is correct, or people will disagree with this method, but at least he knows it, no, law and order governance पे अब जाके कुछ control तो है वो वहाँ पे। and Governor of Bengal has said that the day election results are declared, the power and this control of the police is back to the CM who has won. उसकी oath ceremony नहीं हुई थी, but still she had the power. उसी के everyone knew that TMC won. Mamata Banerjee is going to be CM. मेरा तुम्हें ये कहना है भाई, उसकी बात नहीं मानती, like seriously पुलिस बात नहीं मानती। ये भाई देखो, ये ना ये मैं कहता हूँ कि इसी को कहते हैं शेयर हिपोक्रेसी। अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, ठीक है, ऐसे कुछ काम करवाना होता है तो एक फोन पे सारा काम हो जाता है, और जैसे ही कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है लॉ एंड ऑर्डर की, तो वहां पे पूरा कॉन्स्टिट्यूशन और पूरा लॉ प्रोसीजर ढूंढने लगते हैं। नहीं, मैं कहता हूँ नहीं भी हो। Governor of Bengal said to the local media person there, at least you read the law before you come to ask questions. He said that. कह रहा हूँ ना,
Yeah. that तो अगर उसने एक बात मान लिया. Your CM said and you actually listened to her and agreed whatever she said is only true. Why don't you do some kind of research? I cannot make up for ignorance. He said that I cannot make up for ignorance. I can, if your eyes and ears are shut, I cannot help it. Those are strong words. And if still people and National Commission of Women has actually gone there, मुझे लगता है that representatives of that commission have gone there and talked to the people and concluded that the girls are receiving rape threats and they don't want their daughters to live in West Bengal. They want them to go outside. What kind of state a woman is creating? Right. A woman. उसके अंडर ये होना चाहिए कि दीदी है, दबंग है वो. Because we know that she is rowdy. Okay, we know that she has all the power. We know कि उसके चमचे इधर उधर एक चीज बोलेगी चाहे वो गलत भी हो तो भी हाँ वही सही है. We know it. Under that kind of a situation, उसको तो ये होना चाहिए that she wins the trust of all the women first. Their security. And it's not just, and people are calling it Hindu genocide for one reason, that even TMC workers who were Hindus, their shops were burnt. And the woman worker has put out a video. I forgot her name again. She said that they told me that your shop will not be burned, you will not be touched even, but still they burned my shop. It was to be done to the BJP workers, not to me, but they did it to me anyways. वही है ना कि मैं उन्हीं लोगों को हम Saraswati Jana. There are 4 people carrying her across. Like they dragged her from the house. They lifted her up. They're carrying her, and there are people who are coming. Don't do this. Don't do this. But there are 4 of them, and there's no one. I guess she was being dragged. She cried, and she looked so beautiful. Like she was just 20 years old. And whatever happened to her, like रोना आ जाता है उसको देखकर. Because you often you know that people are being raped, but you do not see it on video, that how are they being dragged, lifted up, kidnapped and tortured, and they're crying for help and there's no one to help. And even that did not shake the conscience of many female Bengalis. I tagged many of them who were laughing at the defeat of BJP. So I was like, you voted for an inferior party anyway. That was BJP. But how is your voted party protecting the females there? Again, the same logic, riots happen everywhere. BJP does it. What about Delhi riots? I'm like, when Delhi riots happened, everyone talked about it. When all political killings are happening, no one is talking about it, even the Bengalis, because they want to justify their vote. But I just want to listen to all this. Right. वही है ना भाई कि कहीं भी पॉलिटिकल वायलेंस हो रहा है तो तुम उसको ये कह के नहीं टाल सकते कि वायलेंस हो रहा है, ये होता आया है. ठीक है, तुमको भाई उसके लिए सिचुएशन लेनी पड़ेगी. जैसे हर वक्त तुम आवाज उठाते रहते हो, ठीक है, तो उसी इसके बार भी आवाज उठाओ कि क्यों हो रहा है. क्योंकि देखो पॉलिटिकल वायलेंस, जैसे निष्ठा ने कहा कि ये क्या 2 लोगों का मर्डर होता है, तो उसमें भाई इंक्वायरी बैठ सकती है. लेकिन अगर 400-500 फैमिलियां फ्री हो रही हैं, जो रिपोर्ट्स कह रही हैं, ठीक है, अभी फिलहाल के लिए, तो अगर भाई ये हो रहा है तो इसको दूसरा कश्मीर ना बनने दिया जाए. ठीक है, ऑलरेडी तुम्हारे ऊपर एक कश्मीरी एक्सोडस का धब्बा है, तुम फिर उसकी. और अगर तुम किसी चीज के लिए बीजेपी को क्रिटिसाइज कर रहे हो और अगर वही चीज करने की तुम फिर कोशिश कर रहे हो, तो हाउ आर यू एनी बेटर देन देम, इवन इफ यू आर क्रिटिसाइजिंग देम फॉर द सेम थिंग. ठीक है, और अगर 10 में से भाई 7 की बात, minorities had to leave it. Imagine if any state is forcing its minorities out of the state. Just imagine the outrage. You know what the level of the outrage from everyone. Like if they are better, like Manmohan Singh said once that they have the first right on our raw materials. He said it as if we are second-class citizens and they are first-class citizens.
If you want equality, then you should equally outrage also. Now I think, why should I outrage on anyone who did not support me in this particular case? Like, I will think twice before supporting that person. People have given images and all during the Delhi riots that this is fake, this is true, this is not fake. Yes, mosques are being burnt, and there's the saffron flag there. You do not see how people are dragged from their homes in Bengal. Then please don't be concerned with Delhi after this, if anything happens there. Or Delhi riot. भाई मेरा कहना इस पे सिंपल सा, अगर 10 में से एक बंदे ने भी घर छोड़ा है ना, अगर 10 में से एक बंदे के साथ भी गलत हुआ तो गलत ही है, ठीक है। उसको तुम ये नहीं कह सकते कि 10 में से 9 फेक हैं। अगर एक भी सही हुआ उसमें से, ठीक है, तो भी वो गलत है। ऐसा प्रेसिडेंस नहीं सेट करना चाहिए, क्योंकि बैड प्रेसिडेंस ना भाई बैड रिजल्ट्स में ही लीड करता है ओवर द टाइम। ऐसा कभी नहीं होगा कि 2 रॉन्ग्स मिलके कभी एक राइट बना देंगे, ठीक है। दैट हैपेंस ओनली इन मैथमेटिक्स, इन रियल लाइफ दैट डजंट हैपन। तो मैं कह रहा हूँ कि लोगों से मतलब यार तुम्हारी खुद की कैसे, मतलब अगर ऐसी कोई चीज हो रही तो तुम्हें स्टैंड लेना चाहिए ना, मोर देन द पॉलिटिकल पार्टीज। क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि सो कॉल्ड जो एक्टिविज्म होती है, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लोगों के द्वारा, कि देखो ये मत भूलना, यहाँ मिसमैनेजमेंट हो रही है, यहाँ मिसमैनेजमेंट हो रही है। मैं काफी पोस्ट देख रहा हूँ इंस्टाग्राम पे अपने लेटेस्ट, ठीक है, कि ये मत भूलना, रिमेम्बर करना, ये करना, यहाँ मिसमैनेजमेंट हो रही है। और इवन मैंने अपने कुछ हद तक दोस्तों से बात की है, ठीक है, तो वो जान सब कुछ रहे, लेकिन पता नहीं क्यों साइड नहीं लेना चाहते, ठीक है, गलत को। मैं कहता हूँ कि अगर कोई कहीं गलत है, ठीक है, तो तुमको उसको वहां आके कंडेम करना चाहिए, क्योंकि बैड प्रेसिडेंस कभी नहीं सेट करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारी कंट्री में हमेशा बैड प्रेसिडेंसी सेट किया जाता है किसी भी मामले को लेकर के। तो ये है भाई कि अगर रिपोर्ट्स बिल्कुल आनी चाहिए क्लियरली, सेंटर को मांगनी चाहिए, जो सेंटर की ताकत है जो करनी चाहिए। लोगों को भी इस बारे में एक्टिवली लेना चाहिए, जैसे हर मामले में ट्विटर पे ट्रेंड करा दिया जाता है, तो इस तरीके से। और भाई ऑन अ पर्सनल लेवल मैं समझता हूँ कि दूसरा कश्मीर अगर वो हो रहा है तो वो नहीं होना चाहिए। इट इज वेरी प्रॉब्लमेटिक, ठीक है। अगर 400 है, अगर 40 भी फ्ली हुए हैं, ठीक है, अगर 400 की रिपोर्ट है 40 भी फ्ली हुए, तब भी ये बहुत रॉन्ग है, ठीक है। तो ये कश्मीर नहीं बनना चाहिए दूसरा एक्सोडस के मामले में, ठीक है। और अगर नहीं हो रहा तो भी ये बात सामने आनी चाहिए ना, खुल के रिपोर्ट आनी चाहिए। ये मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस का काम नहीं है, ठीक है, कि किसी को, क्योंकि हमें ये भी देखना पड़ेगा कि वो फैक्ट चेकिंग कैसे कर रहे हैं ना। फैक्ट चेकिंग के नाम पे फैक्ट चेकिंग कैसे की जाती है, क्योंकि जैसे सर्वे रिपोर्ट्स आती हैं, या जैसे फ्रीडम हाउस रिपोर्ट देता है किसी चीज का, तो हमको ये भी जानना पड़ेगा ना कि एक्चुअली में तुम फैक्ट चेक कैसे कर रहे हो। हमें सोर्स बताया जाए ना कि एक्चुअली में तुमने क्या सोर्सेज दिए हैं, किसी भी तरफ के हो, लेफ्ट राइट सेंटर कहीं के भी हो, ठीक है, इट डजंट मैटर। तुमको ये भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा तुम्हारे सोर्सेज क्या है। सोर्सेज नहीं तो कहाँ से तुमने इन्फॉर्मेशन एटलीस्ट पाई है, क्योंकि ऐसे तो कल को कोई मीडिया फेक कर सकता है ना सोर्सेज चेक की। तुमको एक्चुअली में बताना पड़ेगा कहाँ से आ रहे हैं। तो थोड़ा सा लोगों को इस मामले में होना चाहिए कि कैसे आ रही इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो वो भी एक चीज है। तो भाई मेरा इसी पे बस इतने कहना। करेक्ट। और सबसे बड़ी चीज है कि अगर वहां पे ऐसा हो रहा है, अगर ऐसा कुछ हो रहा है, सबसे बड़ी चीज है कि सेंटर को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए कि अगर आप पावर में हैं, मैं ये नहीं कर रहा कि प्रेसिडेंट रूल ला दो, समथिंग लाइक दैट इज वेरी एक्सट्रीम सिचुएशन, बट स्टिल उनको इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए कि वहाँ पे जो फोर्सेस डिप्लॉयड है एटलीस्ट उनको थोड़ा सा चार्ज दे दें, कि वो एटलीस्ट नहीं तो कम से कम थोड़ा सा कंट्रोल तो लाएं, थोड़ा सा जो सिचुएशन है उसको वर्स ना होने दें। जो हो गया ठीक है, अभी अगर आप डिप्लॉय कर दोगे तो वो एटलीस्ट कुछ तो कंट्रोल करेंगे। अगर आप उनको भी अथॉरिटी नहीं दोगे ये कि आप उसके जो एलिमेंट्स उनको रोको, so that will be like in later stages it will be very hard to control। क्योंकि अगर ऐसा हो गया, जैसे हम बिगर पिक्चर अगर सोचें, तो अगर ऐसे फैमिलीज फ्ली कर गई, ऐसे जो एक्सपेंड जो रॉन्ग एलिमेंट्स है वो अगर उस वहाँ पे पोजेशन बना लेते हैं, सो you are not going to deal with them easily, क्योंकि फिर उसके बाद बहुत सारी चीजें खराब हो सकती हैं। सो इट्स जस्ट दैट कि आपको सोचना पड़ता है कई बार, डिसीजन लेने पड़े पहले, कि अगर आप इस टाइम पे नहीं करोगे तो फिर बाद में उस चीज के ऊपर रिटेलिएट करना या उस चीज के ऊपर गिव बैक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो दैट इज अ वेरी रॉन्ग स्ट्रेटजी, टू वेट एंड देन अटैक लेटर। सो इफ यू हैव टू स्टॉप समथिंग, देन डू इट नाउ। दैट इज व्हाट माय थिंकिंग ऑन दिस इज। They take political
advantage from these situations. And also they're scared that if BJP does anything, then this fascism tag will be all over them again, all over the BJP again. But TMC is not going to go anywhere because TMC has the history of communal violence, rioting, less development, lack of security, and illegal immigration, everything. But still it won. बीजेपी तो शायद अच्छा कर लेगा, जीतने वाली तो है नहीं. So I even saw a meme where a Muslim guy was there and he said, आप चाहे जो कर लो, वोट तो नहीं दूंगा. That happened. And this time, if we look at Bengal elections, the Muslim vote has consolidated against BJP. And all thanks to Prashant Kishore and his leaked video. Because once you put that idea that okay, Modi is getting popular among Hindus and Hindus, they start voting aggressively. They do not think of the manifesto then. They just do not want an outsider there. Throughout the campaigning, Mamata Banerjee has been all about insider and outsider politics. That he's not from Bengal. Meri Mati, Mere Log. वो वाला जो वो बंगाली में कहती है, मैं हिंदी में बता रही हूँ, मेरी माटी मेरे लोग, वो वाली चीज उसने की. एंड पीपल हैव, एंड जितने भी लोकल पॉपुलेशन जो उनके लिए काम कर रहे हैं, दे आर सो अंडर एजुकेटेड, आई गेस. एजुकेटेड नहीं, अंडर एजुकेटेड, इम्पॉवरिश्ड हैं. दे आर जस्ट fearing for their lives. And whoever the BJP worker is there, अभी एक आया भी तो था शायद, two BJP women workers were with folded hands asking कि आप जाने से पहले बता दीजिए हम करें क्या, because we will not be able to save ourselves, you know that. Do not know. They are all about we will oppose the assembly elections, we'll boycott this, we'll boycott that, we will sit on dharna with 303 seats, we'll sit on dharna. So I don't know what they are doing, and their confusion, they are creating a kind of confusion among their own voters. The voter base is divided for BJP. First of all, this Corona handling case, the rallies that they did, now the inaction in Bengal, people are divided, which is very harmful for them because the ugly elections UP mein hai. Right, अगले इलेक्शन यूपी में है. This is going to affect it. I think योगी आदित्यनाथ has a different storyline. मतलब उनके एडमिनिस्ट्रेशन पे उतना वो काइंड ऑफ खींचातानी नहीं है, क्योंकि अपोजिशन में कौन है, अखिलेश यादव. आई गेस अखिलेश यादव पंचायत यूपी में बिकॉज़ समझ नहीं आ रहा था यार, इसे समाजवादी का इफेक्ट जो दिखा रहा. बोलो निशा, बोलो पहले तुम बोलो. नहीं, मैं पूछ रही हूँ, इज इट समाजवादी पार्टी दैट्स विनिंग पंचायत इलेक्शंस इन यूपी? पता नहीं मेरे को. आई कंसीडर इट. नो इट्स सपा में पंचायत इलेक्शंस काफी जीते हैं. दैट्स व्हाई आई हैव कवर. मेरे यहाँ से भी सपा ही जीता है, तो मेजॉरिटी सपा जीती है पंचायत इलेक्शंस. वही, अगर इन लोगों का जो लोकल बेस है, लोकल पॉपुलेशन फ्रॉम द विलेजेस, अगर ये लोग नहीं वोट करेंगे. भाई मैं तुमको एक मतलब ना क्या कहते हैं कि एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे जब मैं 2021 में आया था, ठीक है, मतलब 2021 से यहीं पे हूँ, मैं घर पे ही हूँ, तो जो एक फीलिंग थी, ठीक है, जो बीजेपी के लिए फीलिंग थी, वो चेंज हो गई भाई. और वो बहुत ग्रास रूट लेवल पे मुझे चेंज होती हुई दिख रही है. आई डोंट नो अबाउट द अर्बन पॉपुलेशन, बट इन रूरल विलेजेस आई एम सीइंग अ ड्रास्टिक चेंज. be it related to corona mishandling या किसी भी चीज से, क्योंकि people don't understand, they are also consuming news. Each and every village in house is having a smartphone. तो हाँ, तो वो चाहे वो गलत न्यूज देख रहे हैं, सही न्यूज, वो मैटर नहीं करता, लेकिन उनका परसेप्शन भाई चेंज होता है, वो मैं आंखों के सामने देख रहा हूँ. So this was it for this particular episode, and we hope that you like the content and like the point, or do comment if you are watching at least some part of this, and if you're still here, then do follow, do subscribe, whatever you want to do.
And we'll guys see you with another interesting topic in the next episode. Till then, be energized.